Jai Hind, my lovely learners. How are you all? I hope that you all are fit and fine. So, my dear students, I welcome you all in my classes of study journey. As you know, that we are studying about English grammar from your one and only book, Grammar Time of Class 8, which is a perfect book for basic English grammar and composition. Till now, we have covered the much chapters in this your book of English grammar, Grammar Time, and lastly, we have gone through the chapter of models. I hope that you all might be clear with the meaning and usage of many of the model. Still, if you have any doubt, as I always tell you, you can surely ask me that in the comment section below. Now, moving forward, in this portion of English grammar, we will be discussing about chapter number 10 of your book, that is conditionals. In yesterday's live class, I have already made you aware with the introduction of conditional. मैंने आपको बताया था कि conditional आखिर होता क्या है. We have also discussed its example. Then we have gone through the types of conditional. जिसमें मैंने अगेन आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्या होते हैं, कितने होते हैं. 4 होते हैं. दे आर 4, स्टार्टिंग विद द ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट वन. देन सेकेंड वन इज योर व्हाट, द फर्स्ट कंडीशनल. थर्ड वन इज योर द सेकेंड कंडीशनल, एंड फोर्थ वन इज योर the third conditional. In our last class, we have also discussed about the zero conditionals in detail. Let us revise it once. These conditionals are used for describing general truth and scientific fact. We saw its pattern and then example. Now moving forward in this chapter of the conditional, we will see about our second category, second types of conditional, that is with the name of the first conditional. Don't be confused. I have started describing about the conditional starting from the zero, and our next category is about the first conditional. If you see about the first conditional or conditional type 1, it is also known as probable conditional. Okay, first conditional or conditional type 1 is also known as probable conditional. So, in the first conditional, the if clause is in present tense. किस में होता है if clause? हमारे first conditional में present tense में. Okay, these sentences describe something that is likely to take place, so that they are called probable और लाइकली कंडीशनल. तो जैसे कि हमने ज़ीरो कंडीशनल में पढ़ा था कि वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, राइट. तो वैसे ही फर्स्ट कंडीशनल किसके लिए यूज़ होता है, उन इवेंट्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा श्योर हैं हम कि होंगे. ठीक है, कोई एक ऐसा इवेंट जो बहुत ही ज़्यादा हमको श्योरिटी दिलाता है कि वो फ्यूचर में ऑकर होगा ही होगा. इसीलिए हम इस कंडीशनल सेंटेंसेस को प्रोबेबल और लाइकली कंडीशनल्स कहते हैं, क्योंकि इसका होने के चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है फ्यूचर में. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पैटर्न. सो द पैटर्न इज इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस विल और विल नॉट फ्यूचर में. जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रोबेबल कंडीशनल में हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक ऐसे इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं होने के. तो कब होगा, ऑब्वियसली बात है वो फ्यूचर में होगा. इसलिए आप याद रख सकते हैं कि जो पैटर्न होता है वो इफ़ क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और उसके बाद मेन क्लॉज में विल और विल नॉट होता है. ओके, एक एक करके हम इसके एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले जो प्रोबेबल कंडीशनल है वो हमने अभी अभी जैसा कि डिस्कस किया, वो किस में यूज़ होता है, थिंग्स विच इज़ लाइकली टू ऑकर, जिस काम के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं नियर फ्यूचर में. ओके,
So you can see the example here. If you send a written request, you will get a reply. अगर तुम एक written request भेजोगे तो तुम्हें reply मिलेगा. तो एक clause है पहला वाला if और second है main clause. मतलब कि दूसरा clause. if clause में किस चीज़ का यूज़ हुआ है? simple present tense. मतलब कि send a written request. और उसके बाद हमारा विल आ गया है मेन क्लॉज में, मतलब कि विल गेट अ रिप्लाई. एक इवेंट बता रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि होगा ही होगा. Okay, so this is your first use of probable conditional. Now moving forward, we will see the second use of probable conditional. That is for giving permission to make a request, to give an advice or command, and to show ability. मतलब कि प्रोबेबल कंडीशनल्स यूज़ होता है परमिशंस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, एडवाइस, कमांड या फिर किसी चीज़ की एबिलिटी दिखाने के लिए. वन बाय वन लेट अस सी द एग्जांपल. इफ़ यू सी निकिता गिव हर माय बेस्ट विशेस. तो यहाँ पे रिक्वेस्ट दिखा रहा है, अगर तुम निकिता को देखते हो तो उसे मेरे बेस्ट विशेस दे देना. ओके, इफ़ यू सी इफ़ के साथ क्या यूज़ हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ़ क्लॉज में, और उसके बाद मेन क्लॉज में यहाँ पे हम एक चेंज देख रहे होंगे कि यहाँ पे विल और विल नॉट का यूज़ नहीं हुआ है. सो ये हमें बताता है कि ये जो पैटर्न है ये उसी टाइम यूज़ होगा जब हम किसी ऐसे इवेंट के बारे में बात कर रहे हो जो फ्यूचर में होगा. ऑब्वियसली जब इवेंट फ्यूचर में होना है तो हम वहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे, राइट. पर अगर हम किसी परमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के बारे में, एडवाइस, कमांड और एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर अगेन हम प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस का अदर फॉर्म यूज़ करेंगे. जैसे कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं. ओके. Now second one example, if you want to apply for a new job, read the classified column in the newspaper. ये एक सजेशन है, अगर तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना है तो क्लासिफाइड कॉलम को पढ़ो न्यूज़पेपर में. ओके, तो फर्स्ट वन इज़ योर इफ क्लॉज एंड सेकेंड वन इज़ योर व्हाट मेन क्लॉज. इफ़ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर स्विच ऑन द मोटर. कमांड दिया जा रहा है, अगर पानी की कमी है तो मोटर खोल लें. इफ़ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, इस लिखा है यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. स्विच ऑन द मोटर, अगेन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो सिंपल प्रेजेंट के साथ हम अगेन सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ कर सकते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं. किस चीज़ के टाइम पे? जब हम परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड और एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हों. ओके, आई होप यू are understanding all the concepts in this lecture. Still, if you are having any doubt, do tell me in the doubt session, or you can mention below in the comment section. Don't forget to tell me whether you are clear with the explanation or not in the same comment box below. Then in the if clause, as I already told you, we use simple present, and then in the main clause we can use simple present, the present continuous और present perfect tense. तो ये if clause और main clause दोनों में यूज़ हो सकते हैं ये सारे tenses, simple present, the present continuous और present perfect tense. ओके, if clause और main clause दोनों में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि देख सकते हैं अभी तो ऊपर हमने क्या देखा कि मेन क्लॉज में चेंजेस हो रहा है. अब यहाँ पे देखेंगे इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस में ही चेंजेस हो रहे हैं फॉर्म में, पर है टेंस प्रेजेंट ही. इफ़ यू सेंड एन एप्लीकेशन यू विल गेट ए स्कॉलरशिप. तो यहाँ पे सेंड क्या है? सिंपल प्रेजेंट. इफ़ शी इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस आई कैन हेल्प हर. तो लुकिंग यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आपको पता ही है. इफ़ यू हैव ड्रॉन द पिक्चर यू कैन कलर इट. तो हैव लगा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है. तो इस तरीके से हमारा द फर्स्ट कंडीशनल काम करता है किन चीज़ों के लिए? एक फ्यूचर में होने वाले लाइकली इवेंट के लिए, देन अगेन परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड और एबिलिटी के लिए. ओके, जब हम बात कर रहे हो फ्यूचर वाले इवेंट की तो इफ़ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है इफ़ क्लॉज में, और मेन क्लॉज में विल और विल नॉट. पर अगर हम बाकी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो तो हमारा
Generally, simple present tense, present continuous और present perfect tense if और main clause दोनों में use हो सकता है. Okay. I hope again that you have understood all the concept which I am telling you. Now, without increasing the time of this lecture, we are ending up here only, and about the second conditional and third conditional I will tell you in next lecture. Don't forget to read that chapter completely and also solve the exercise 10.1 B section as well as F section. This is your homework for today. So my dear students, stay blessed, keep studying, have a good day. Jai Hind.